Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we completed the point, that is the criticism का point complete हुआ था, उसका एक last point देखना बाकी था, that is the historical materialism contradicts itself. Right? According to historical materialism, all thoughts, all philosophies and scientific theories and all ethical systems represent certain material and economic conditions and are inseparable connected with their own specific objective conditions. With the lapse of a particular period and change in the material, economic and social conditions which are necessary and inevitable, every idea or thought, every philosophy or scientific theory or ethical system is inhabilitated and is ultimately bound to be replaced by different idea, thought or theory. Then we were studying about the theory of class struggle. Right? In that we studied Baba, according to Marx, class is manifested of economic differences, like concept of class struggle. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लास स्ट्रगल में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे जो क्लासेस है रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. जब अपन क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास यानी क्या, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग देयर own role to play in the relation of production. The relation of production refer to the fact that in the process of industrial production, the labor and capital stands in specific relation to each other. Labor is the capacity while the working class possesses. Capital is the instrument invested out of which profit is derived. Right? देर आर लेबर्स आर क्या है, उनके पास लेबर पावर रहती है और जो ओनर्स है उनके पास कैपिटल रहता है. तो कैपिटल से प्रॉफिट मिलता है और लेबर्स को वेजेस मिलता है. देन मार्क्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्लासेस आर हेंस द ग्रुप ऑफ पीपल identified and distinguished from each other on the basis of their relation of the economic means of production. Economic means of production refer to economic infrastructure that few people owe as many against. Many people are capitalist and many are laborer. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, लैंड, मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड द स्किल दैट असिस्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. नाउ द क्लास स्ट्रगल. द वर्ड class struggle, it came from the Latin, that is the classes, a group called to arm, a division of people. In the rule of legendary Roman king Servilius, उनके हिसाब से क्या है, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 5 क्लास और ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ. Subsequently, class was applied to a large group of people into which human society came to be divided. See, Marx recognized class as a unique feature of capitalist society. Marx has used the term social class throughout his work but explained it only in a fragmented form. See, like a social class, Marx distinguished 3 classes related to 3 sources of income. First is the owner of a small labor power or laborers whose main source of income is labor. Second is the owner of capital or capitalist whose main source of income is profit or surplus value. Then third is landowner whose main aim of income is ground rent. In this way, the class struggle of modern capitalist society is composed of 3 main class, that is the salaried labor of worker, capitalist and landowner. उसमें भी haves and have nots है. Haves are the owner of landlord, they are called bourgeois, and have nots are those who are not doing but they have a labor power, they are called as a proletariats. Now Benz and Leibniz have identified 5 variables that determine a class in a Marxist sense. 5 variables क्या है, conflict over the distribution of economic reward between the classes, then easy communication between the individual in same class position so that ideas and action programs are readily disseminated, growth of class consciousness in the sense that the members of the class have a feeling of solidarity and understanding of their historical role, profound dissatisfaction in the lower class over its inability to control the economic structure of which it feels itself to be the exploited victim, establishment of political organization resulting from the
economic structure, the historical situation, and maturation of class consciousness. Now we'll look at the next point, that is the criteria for determination of classes. See, अपन क्लासेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5 क्लासेस वगैरह सब बात कर रहे हैं, तो उसके कुछ क्राइटेरिया भी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लासेस. अ सोशल क्लास हैज़ 2 मेजर क्राइटेरिया. एक तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, पीपल शेयरिंग द सेम रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्राइज अ क्लास. जो लोग सेम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सेम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास, दे हैव अ वन क्लास. फॉर एग्जाम्पल, ऑल लेबर्स हैव अ सिमिलर रिलेशन विद द लैंड ओनर. सी, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑल लेबर्स, सब लेबर्स क्या है, हैव अ सिमिलर रिलेशन विद द लैंड ओनर. ऑन द अदर हैंड, all the landowners as a class have a similar relation. See, on the other hand क्या है, एक तरफ क्या बोल रहा है, यहाँ पे लैंड ओनर से एज अ क्लास हैव अ सिमिलर रिलेशन विद द लैंड एंड लेबरर्स. इन दिस वे लेबरर्स ऑन वन हैंड एंड लैंड ओनर्स ऑन द अदर हैंड कुड बी सीन एज क्लासेस. सी, लेबर एक तरफ है और लैंड ओनर एक तरफ है. However, for Marx, the relationship is not sufficient to determine the class. See, but Marx के लिए क्या था, ये जो रिलेशन बोल रहे हैं अपन, लेबर का एक अलग रिलेशन है, लैंड ओनर का विथ लैंड एंड लैंड ओनर का अलग है, बट लैंड एंड लेबर क्या है, दे हैव अ कॉमन रिलेशनशिप. बट ये इतना एक्सप्लेनेशन सफिशेंट नहीं है वो टू डिटरमाइन द क्लास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ not sufficient for class to be class in itself, but it should also be class for itself. See, इतना सा डिटरमाइन किया तो हो जाएगा क्या, इससे क्या है, क्लास इन इटसेल्फ है, वो उसी में एक क्लास है, बट एक्चुअल क्या रहना चाहिए, इट शुड बी क्लास फॉर इटसेल्फ. मार्क्स मीन्स by class in itself the objective criteria of any social class. See, Marx means by class in itself the objective criteria of any social class. He is not satisfied with the objective criteria. See, Marx क्या है, Marx here it is not satisfied with the objective criteria, hence he equally emphasized upon the other major criteria, that is class for itself or the subjective criteria. इसलिए वो क्या कर रहा है, वो he is putting an equal emphasis upon other major criteria. और भी दूसरे मेजर क्राइटेरिया है उनके ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं, दैट इज द क्लास फॉर इटसेल्फ और द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया. एनी कलेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग with a similar relation would make a category, not a class, if subjective criteria are not included. See, any collectivity of human grouping, कोई भी collectivity of human grouping with a similar relation would make a category, not a class. वो एक category बनती है, class नहीं बनता है if subjective criteria are not included. अगर अपन subjective criteria नहीं include करेंगे तो the members of any one class not only have similar consciousness but they also share a similar consciousness of the fact that they belong to the same class. See, the members of any one class not only have similar consciousness, ये जो member है उनके पास क्या है, they not only have similar consciousness but they also share a similar consciousness of the fact that they belong to same class. The similar consciousness of a class serve as the basic for uniting its member for organizing social action. See, this similar consciousness of a class, ये जो similar consciousness of a class है, it serves as the basic for uniting its member for organizing social action. Here, this similar consciousness towards acting together for their common interest is what Marx class for itself. See, here ये जो consciousness रहता है कि अपन ये ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दिस इज़ आवर कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑल, उसको मार्क्स क्या बोलता है, एक क्लास बोलता है.
and that is the class for itself. In this way, these two criteria together determine a class and class structure in any given society. See, in this way, इसी तरह से these two criteria together determine a class. ये जो दो criteria है, it determine a class and class structure in any given society. Then moving towards the next point, that is the classification of society in history and emergence of classes. इतनी देर में अपन क्या देखा, पहले अपन ने क्लासेस की बात की, तो फिर कुछ क्राइटेरिया दैट डिटरमाइंस द क्लास. टू क्राइटेरिया क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड द सेकेंड वाज द सब्जेक्टिव क्राइटेरिया. नाउ वी लुकिंग एट द डीप पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इन हिस्ट्री एंड एमर्जेंस ऑफ क्लासेस. Marx differentiated stages of human history on the basis of their economic regime और modes of production. See, मार्क्स ने क्या किया है, डिफ्रेंशिएटेड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. उसने ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक रेजिमी और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. ही डिस्टिंग्विश 4 मेजर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये उसने 4 मेजर और प्रोडक्शन की बात की है. अब वो क्या है वो अपन देखेंगे. फर्स्ट इज द एशियाटिक, सेकेंड एंशियंट, थर्ड फेडरल एंड द फोर्थ वन इज द कैपिटलिस्ट. ही प्रिसाइडेड दैट all social development will accumulate into a stages called communalism. See, ये जो 4 क्लास की बात कर रहा है, फर्स्ट इज द एशियाटिक, सेकेंड इज द एंशियंट, थर्ड इज द फेडरल एंड द फोर्थ इज द कैपिटलिस्ट. और ये दिस ही प्रिसाइडेड, और उसने बोला कि ऑल सोशल डेवलपमेंट सब क्यूमुलेट हो गए इनटू अ स्टेज कॉल्ड कम्युनिज्म. जब ये सब अच्छे से चलेगा तो इट वुड गिव राइज टू अ कम्युनिज्म. He classified this classification of society or various stages of human history into, उसने आगे फिर क्लासीफाई किया into a permissive communism, slave owning, federal, capitalist and communist stage. 6 स्टेजेस बोले हैं. एक तो ह्यूमन हिस्ट्री में परमिटिव कम्युनल, स्लेव ओइंग, फेडरल, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट स्टेज. अभी एक एक अपन देखेंगे. अभी द परमिटिव communal system was the first and the lowest form of organization of people. See, communal system क्या था, was the first and the lowest form of organization of people. It existed for thousands of years. ये communal system क्या है, ये सबसे पहले आया था और सबसे नीचे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल. और ये कितने साल पुराना है, ये हज़ारों साल पहले पुराना है. ये man started using permissive tools like sticks and stones for hunting and food gathering. See, man क्या करता है, see ये क्या बोलते हैं, जब अपन अपने पूर्वज, एकदम पूर्वज पहले वो बंदर थे एंड ऑल, फिर बंदर से उनका वो टेल वगैरह निकल गया तो वो ह्यूमन बीइंग जैसे थोड़ा सा रहने लगे. तो वो खाते क्या थे, तब उन्हें वो स्टोन एज मैन का, अगर आपने याद रहेगा, आपको आपने पढ़ा होगा स्टोन एज मैन के बारे में वगैरह, बस वो यही स्टेज की बात कर रहे हैं. दैट इज सेम हियर. सी, मैन स्टार्टेड यूजिंग परमिटिव टूल्स लाइक स्टिक्स एंड स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. सी व्हाट मैन डिड, मैन स्टार्टेड यूजिंग टूल्स लाइक स्टिक्स क्या करते थे, स्टिक्स यूज़ करते थे, स्टोन्स यूज़ करते थे फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. लाइक ट्री के बड़े बड़े जो थिक रहते थे वो निकालते थे, उसको अच्छे से घस के दे यूज्ड टू यूज़ दैट टूल फॉर हंटिंग एंड ऑल. फिर फूड गॅदर करने के लिए भी उनके पास वो जो झाड के ही फांदी असते ना, त्याचं सगळं टूल्स वगैरे बनवायचे ते. ग्रॅज्युअली मैन इम्प्रूव दिस टूल्स. फिर धीरे धीरे क्या करने लग गया, मैन इम्प्रूव दिस टूल. ही लर्न टू मेक फायर, कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री. धीरे धीरे क्या किया, उसने फायर बनाना सीखा. पहले फायर किससे बनाते थे वो लोग, वो जो स्टोन आते थे ना, व्हाइट कलर के स्टोन आते, आपण गार्गीचे स्टोन वगैरह असे काय नाव आहे ना त्याला, हम लोग छोटे थे तब करते थे. वो स्टोन घसते थे तो वो आग लगती थी, बोलते थोड़ा सा फायर आता था.
तो पहले वो लोग स्टोन वगैरह यूज़ करते थे। तो फिर he learned to make fire, then he started cultivating। कैसे, एक जगह थोड़ा सा सेटल होने लग गए। सेटल होने कहाँ होते थे, रिवर के आसपास सेटल होते थे। रिवर के आसपास सेटल होते थे तो दे स्टार्टेड ग्रोइंग सम क्रॉप्स एंड ऑल। तो फिर अच्छे से क्रॉप्स आने लग गए तो क्या हो गया, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग मोर एंड मोर। एंड देन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी क्या, एनिमल्स रखना, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शीप, हेन सब रखते थे। In the system of very low level of force of production, the relation of production were based on common ownership of the means of production. See, in this system of very low level of force of production, अब इस system में क्या था, it was a very low level of force of production. The relation of production were based on common ownership of means of production. अब क्या था, means of production क्या था, एक common ownership के पास रहता था। Therefore, the relation were based on mutual assistance and cooperation. तो उस वक्त रिलेशन सबके साथ कैसे थे, इट वॉज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कॉर्पोरेशन। सी बाबा तेरे पास है ना, तेरे को रखना है ना, तू सब रख, जब हमको ज़रूरत रहेगी तब तू दे देना। तो ये क्या था, उस वक्त लोगों में क्या था, लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे। तेरे को आता है ना, मुझे भी मदद कर बोल के ऐसे बोलते थे। एंड दे यूज्ड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर वेरी नाइसली। These relations were conditioned by the fact that people with their primitive implement could only withstand the mighty force of nature together collectively. See, these relations were conditioned by the fact that people, अब उस वक्त कैसा था, ये जो relation था, it were conditioned by the fact that people with their primitive implementation could only withstand the mighty force of nature together and collectively. In such a situation, exploitation of man by man did not exist because of two reasons. उस वक्त क्या था, एक्सप्लॉयटेशन कुछ भी नहीं होता था, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था। आज क्या है, इंसान इंसान को एक्सप्लॉइट करता है ना, तो उस वक्त क्या था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं कर पाता था, उसके दो रीजंस थे। फर्स्टली, the tool used means of production were so simple that they could be produced by anyone. क्यों एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, उस वक्त जो टूल्स थे यूज, दैट इज़ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो यूज़ करते थे वो इतने सिंपल तरीके से बनाए जाते थे कि कोई भी वो बना सकता था, मतलब इतना आसान था। दिस वर इम्प्लीमेंटेड लाइक स्पीयर, स्टिक, बो एंड एरो एक्सेट्रा। सी ये कैसे बनते थे, दिस वर इम्प्लीमेंटेड लाइक स्पीयर, स्टिक, bow and arrow etc. Hence, no person or group of people had the monopoly of ownership over the tool. तो इसलिए क्या है, किसी भी इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल, किसी के पास भी ओनरशिप नहीं थी, मोनोपोली हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ओनरशिप किसी के पास थी नहीं, इतने इजीली हर कोई बना पाता था कि मोनोपोली किसी के पास रही नहीं थी। सेकेंडली, प्रोडक्शन वॉज एट लो स्केल। सेकेंड रीज़न क्या था, प्रोडक्शन एकदम लो स्केल पे था, मतलब छोटा सा प्रोडक्शन करते थे। द पीपल एग्जिस्टेड मोर और लेस ऑन अ सब्सिक्वेंट लॉर्ड। सी द पीपल एग्जिस्टेड मोर और लेस ऑन अ सब्सिक्वेंट लॉर्ड। द प्रोडक्शन वॉज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ पीपल प्रोवाइडेड एवरीबडी वर्कड। सी द प्रोडक्शन वॉज जस्ट सफिशिएंट, मतलब इतना प्रोडक्शन बनाते थे कि वो उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उतना सफिशिएंट था, राइट। और बच गया तो बांटते थे, वरना हर कोई आराम से इतना कल्टीवेट करता था कि उनको अच्छे से सब कुछ बस हो जाए। Therefore, it was a situation of no master and no servant. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी मालिक नहीं, कोई भी नौकर नहीं, क्योंकि हर कोई जितना उनको लग रहा है उतना वो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। सो नो वन इज़ योर मास्टर, नो वन इज़ योर सर्वेंट, हर कोई इक्वल है यहाँ पे, लाइक ऑल वेर इक्वल। Gradually, with time, man started perfecting his tools, his craft of producing, and surplus production started taking place. See, gradually with time, अब क्या है, टाइम बदलने लग गया। Man started perfecting his tools. Man ने क्या किया, अपने टूल्स और अच्छे से बनाने लग गया। ये जो क्राफ्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सरप्लस प्रोडक्शन, ये सब चालू होने लग गया। अब क्या हो गया, अब मैन टूल्स बनाने में ज़्यादा होशियार होने लग गया
और उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन भी बनाने लग गया, तो अभी जो भी है उसके पास सरप्लस होने लग गया। दिस लीड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रिमिटिव इक्वालिटी गिव वे टू सोशल इनइक्वालिटी। अब क्या हो गया, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने लग गए, अपने लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, तो क्या हो गया, इट लीड टू इनइक्वालिटी। Thus, the first antagonistic class slaves and slave owner appear। तो क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक चालू हो गया, जैसे slaves and slaves owner appeared। This is how the development of force of production led to the replacement of primitive communal system by slaves। See, अभी जैसे जैसे प्रोडक्शन डेवलपमेंट होने लग गया, तो ये जो परमिटिव कम्युनल सिस्टम था, इट गिव राइज टू, धीरे धीरे ये कम होके स्लेवरी सिस्टम आने लग गया। अब क्या है, स्लेव सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग ओवर हियर। नाउ we'll look at the second, that is the slave owning। In the slave owning society, primitive tools were perfected and bronze and iron tools replaced the stone and wooden implements। See, in the slave owning society, see, primitive tools were preferred and bronze and iron tools replaced the stone and wooden। पहले लोग क्या थे, primitive स्टेज में क्या थे, लोग स्टोन वगैरह यूज़ करते थे, वुडन इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे। अब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्लेव ओनिंग सोसाइटी में, पीपल प्रेफर्ड यूजिंग ब्रॉन्ज एंड आयरन टूल्स। आज भी अपने को आयरन के टूल्स वगैरह दिखते हैं ना, तो वो अभी वो यूज़ करने लग गए। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रेजिंग, माइनिंग एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलप्ड। सी, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, लाइव स्टॉक रेजिंग एंड माइनिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप्ड। सी, माइनिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप्ड हियर एंड लाइव स्टॉक अभी डेवलप होने गया। द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो चेंज्ड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। से अभी डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या हो गया, अभी इतना हैंडीक्राफ्ट वगैरह डेवलप हो रहा है, माइनिंग, लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, इतना सब डेवलप हो रहा है, तो क्या है, ये फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। These relations were based on the slave owner absolute ownership of both the means of production and the slave himself and everything he produced। See, these relations क्या है, were based on the slave's owner। अब क्या है, ये जो relation था, it was based on the slave owner absolute ownership of both the means of production and the slave himself and everything he produced। The owner left the slave only with the bare minimum necessity to keep him for dying of starvation। See, ओनर्स लोग क्या करते थे, स्लेव्स को इतना ही, थोड़ा ही अमाउंट देते थे, इतना पैसा देते थे कि बस वो कुछ तो थोड़ा बहुत कुछ खा ले, ताकि भूख के मारे वो मरे नहीं। मतलब कितनी गंदी सोच थी देखो ओनर्स की, मतलब जितना उसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे उतना एक्सप्लॉइट करो, और देते वक्त क्या दो, इतना सा दो ताकि थोड़ा बहुत खा के जिंदा रहे। In this system, the history of exploitation of man by men and the history of class struggle began। See, ये स्लेव ओइंग सिस्टम में क्या हो गया, एक आदमी ही दूसरे आदमी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और यहाँ पे क्लास स्ट्रगल चालू हो गया, एंड द बिगिंस विद द क्लास स्ट्रगल। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स वेंट ऑन एंड स्लेव बिकेम एन impediment to the expansion of social production। See, the development of productive force went on। अब ये जो डेवलपमेंट चलता रहा और स्लेव्स क्या रहे, स्लेव्स एक्सप्लॉइट होते रहे, एंड सोशल प्रोडक्शन भी चलता रहा। प्रोडक्शन डिमांडेड द कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ये जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन डिमांडेड द कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स, higher labor productivity, but the slaves had no interest in this as it would not prove his possession। See, प्रोडक्शन डिमांडेड, क्या प्रोडक्शन की क्या डिमांड थी, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट चाहिए, कंटिन्यू नया नया कुछ तो इम्प्लीमेंट चाहिए। हाँ, अभी प्रोडक्टिविटी लेबर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना था, बट स्लेव्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा ही बनाने में। क्यों? क्योंकि उससे उनकी पोजीशन तो अच्छी होने वाली नहीं थी, उनका हालत बुरा तो बुरा ही रहने वाला था।
With the passage of time, the class conflict between the classes of slaves owner and the slaves became acute, and it was manifested in the slaves revolt. See, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, क्या है ये जो स्लेव्स ओनर है एंड स्लेव्स, इनके बीच में क्या है, झगड़े बढ़ते गए, स्लेव्स लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगे, एंड देयर वाज अ स्लेव रिवॉल्ट. दिस रिवॉल्ट टुगेदर with the raid from neighboring tribes and determined the foundation of slavery, leading to a new stage, that is the federal system. See, this revolt together, अब सारा revolt together लेके क्या हुआ, वो आजू बाजू neighboring tribes, जो छोटे छोटे tribes थे वो सारे एक साथ आए एंड ये slave system end किया और न्यू सिस्टम आया. दैट न्यू सिस्टम इज नोन एज द फेडरल सिस्टम. We'll wind up our lecture here. Federal system we'll study in the next lecture. Read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.